Hello, welcome back. Now let us do or let us study about the types of quadrilaterals. Means some special quadrilaterals are there which we are going to study. The very first among them is a parallelogram. Right, so let us define a parallelogram and then we'll draw a parallelogram and try to understand it. So what's a parallelogram? Parallelogram is a quadrilateral. See, parallelogram is a quadrilateral in which each pair of opposite sides is parallel. Meaning something like this. If I draw a figure like this, I get something like a parallelogram. What they say is each pair of opposite side is parallel, means this and this side, these two sides are opposite and they are parallel to each other. Same thing, this side and this side are parallel to each other. Let us name this parallelogram. Let us name it ABCD. So I have parallelogram ABCD. See, a parallelogram ABCD, when I write this figure, when I write like this, this states a quadrilateral. This is a quadrilateral ABCD. But whenever I write a M on top of quadrilateral, this like this, right, this becomes a parallelogram, right? So whenever you have a figure of a quadrilateral and upper M agar hoga, so that becomes a parallelogram ABCD. Now let us see the properties of parallelogram ABCD. First property of a parallelogram is that opposite sides are parallel. Meaning, if I write side AB यहाँ पे and side CD are parallel. See, ये parallel का निशानी है. Same way I can write side AD is parallel to side BC. The second property is opposite sides are equal, meaning AB का जो वैल्यू है वही CD का वैल्यू होगा. So AB and CD are equal in measure. Same way AD and BC are also equal in measure. Then we are given the opposite angles are equal, means angle A and angle C are opposite angles and they are equal in measure. And angle B and angle, this should be equal. I was thinking something else. So angle B and angle D are equal. What I was thinking, I'll also share with you. The adjacent angles, right, of a parallelogram, let's say angle A and angle B, they are adjacent angles, बाजू बाजू के angles है. They are supplementary, means उनका addition 180 होगा. Same way angle A and angle D are also adjacent angles, तो उनका addition 180 होता है, right? ये एक और property है कि in a parallelogram the adjacent angles are supplementary, opposite angles are equal, and the diagonals bisect each other. Diagonals means, let us say if I draw AC, diagonal AC, and if I draw a diagonal BD, ये जो diagonals है एक दूसरे को bisect करेंगे. मीनिंग let us say उनका मीटिंग पॉइंट, अगर मैंने पॉइंट M लिया, सो AM और MC इक्वल होगा. I'll get AM और MC इक्वल. सेम थिंग DM और BM भी इक्वल होगा. DM और BM भी इक्वल होगा. सो इन अदर वर्ड्स M जो है is a midpoint of line segment AC and also of line segment BD. That is the meaning of bisect. Bi means do, sect means part. Do equal part में वो divide
करता है. सो ये प्रॉपर्टीज हुए पैरेललोग्राम के. ओके, अब एक चीज मैं आपको दिखाता हूं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्पेशल क्वाड्रिलैटरल्स. वन इज अ ट्रेपेजियम, सेकंड इज अ पैरेललोग्राम, थर्ड इज अ काइट. हमने अभी पैरेललोग्राम के बारे में देखा. अब पैरेललोग्राम जो है, there are 2 types of parallelograms. One is a rectangle and second type of parallelogram is a rhombus. और rhombus और rectangle they are type of parallelograms. rhombus और rectangle का common features वाला एक और है, that is called a square. So you see, parallelogram एक स्पेशल क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है, रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है, स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है, या स्क्वायर रेक्टेंगल भी है, या स्क्वायर रोम्बस भी है. सो मेट ये सीक्वेंस है गलत कि पैरेललोग्राम के हर फीचर, एवरी फीचर ऑफ पैरेललोग्राम विल बी इन रेक्टेंगल. रेक्टेंगल में अपना खुद का फीचर भी होगा. सेम वे पैरेललोग्राम का हर फीचर, हर प्रॉपर्टी रोम्बस में होगा. ओके, और रोम्बस में अपना खुद का प्रॉपर्टी भी होगा. एंड स्क्वायर में पैरेललोग्राम के, रेक्टेंगल के और रोम्बस के तीनों के फीचर्स स्क्वायर में होने वाला है. ओके, तो हमने पैरेललोग्राम अभी हमने देख लिया. नाउ लेट अस टॉक ऑफ रेक्टेंगल एंड रोम्बस एंड स्क्वायर. बाद में हम ट्रेपेजियम और काइट को समझेंगे. ऑलराइट, नाउ लेट्स डू अ रेक्टेंगल. What's a rectangle? A rectangle is a parallelogram, जैसे हमने आगे टेबल में दिखा था, in which each angle is a right angle. देखो, each angle, हर एंगल right angle है. तो let us draw a rectangle and then let us see the properties of a rectangle. Okay, so let us say I have rectangle A, B, C, D. Okay, अब उसके प्रॉपर्टीज देख लेते हैं. सी, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. यानी ऑपोजिट साइड मीन्स ए बी एंड सी डी इक्वल भी है, और ए बी और सी डी एक दूसरे के पैरेलल भी है. ये तो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज है ना. सेम वे ए डी एंड बी सी आर ऑल्सो इक्वल and AD and BC are also parallel to each other. ये पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी है. सेकंड जो इंपॉर्टेंट है, all angles are equal and each angle is a right angle, यानी 90 डिग्री है. मीनिंग एंगल A, एंगल B, एंगल C and angle D. I'm sorry, let's do angle D and angle D. All angles are equal and each angle measures 90 degree है, right angles है. मीनिंग something like this, ये हर एंगल उसका right angle होगा. Okay, fair. And diagonals are equal and they bisect each other. यहाँ पे diagonals कौन से हो गए? Diagonal AC and diagonal BD, and they meet at point M. So यहाँ पे we are given diagonals are equal, means AC and BD are equal. Okay, diagonals are equal and they bisect each other. Bisect means AM और MC equal है, but because equal भी है, BM और DM भी equal होगा. So we also can write AM is equal to CM and that only is equal to BM and that also is equal to DM. Remember this, all the, yes, M will be midpoint of AC and BD both. So this is property of rectangle. अभी हम रोम्बस के बारे में देखते हैं. Okay, अभी हम रोम्बस के बारे में देखते हैं, right? So now we talk of रोम्बस. What's a रोम्बस? रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है in which all sides are equal. यानी देखो, ये if I name this rhombus as, let us take M
So if this rhombus is named MNOP, all the sides are equal, means MN, ON, OP and MP are equal. So property क्या है उसके? All sides are equal. So I have side MP is equal to side PO is equal to side ON and is equal to side MN. All the four sides are equal. दूसरा है opposite angles are equal. सारे एंगल इक्वल नहीं है ना, सिर्फ एंगल M और एंगल O इक्वल है, एंड एंगल P एंड एंगल N इक्वल है. एंड दे से डायगोनल्स जो है, ये डायगोनल्स OM एंड डायगोनल PN are bisecting each other at right angles. यहाँ पे right angle बनता है. So this is, let's say ये point M पे वो दोनों meet हो, sorry M तो यहाँ पे आ गया. Let us say the two diagonals are meeting in point, what should I take? चलो let's take point X. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? We are given ये दोनों diagonals OM and ON, diagonal OM is perpendicular to diagonal PN. ये 90 डिग्री में मीट हो रहा है. They bisect each other at right angles. ये रोम्बस का इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. तो सारे साइड इक्वल है एंड डायगोनल्स, देखो डायगोनल का माप इक्वल नहीं है. यू सी PN बड़ा है, OM छोटा है, लेकिन दोनों मीट कर रहे, बाइसेक्ट तो कर रहे एट राइट एंगल्स. बाइसेक्ट मीन्स ये मिड पॉइंट तो है ही, दिस इज अ मिड पॉइंट राइट, लेकिन ये दो अलग साइड है और ये दो साइड अलग है राइट. नाउ लेट अस टॉक ऑफ द फोर्थ स्क्वायर. ओके, सो लेट मी ड्रॉ अ स्क्वायर नाउ. स्क्वायर रोम्बस जैसा ही है और स्क्वायर रेक्टेंगल जैसा है ना, यानी दोनों के प्रॉपर्टी उसमें है, यानी सारे साइड भी इक्वल और सारे एंगल भी इक्वल, तो स्क्वायर हो गया. लेट अस से स्क्वायर पी क्यू आर एस इज गिवन. अब उसके प्रॉपर्टी अगर देखें तो स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम इन विच all sides are equal and all angles also are equal and they are right angles, right? So यहाँ पे PQ, QR, SR and PS equal है, यानी वो रोम्बस का प्रॉपर्टी हुआ right? तो साइड PQ is equal to QR is equal to RS is equal to PS, right? ये चार साइड इक्वल है. All angles also equal. So we are given angle P is equal to angle Q is equal to angle R is equal to angle S, and सारे angle right angle भी है, all are equal to 90 degree. And then we are given diagonals जो है, diagonals PR and diagonals QS भी इक्वल है एंड 90 डिग्री में भी वो बाइसेक्ट करते हैं. ओके, सेम रोम्बस और रेक्टेंगल दोनों का प्रॉपर्टी. तो डायगोनल्स पी आर और क्यू एस दोनों इक्वल भी है एंड एट द सेम टाइम पी आर और क्यू एस एक दूसरे को परपेंडिकुलर भी है, 90 डिग्री में भी वो मीट करते हैं. तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर. अब ये पैरेललोग्राम के प्रकार ही है राइट. नाउ लेट अस सी द अदर टू, ट्रेपेजियम और काइट. सो व्हाट इज अ ट्रेपेजियम? ट्रेपेजियम एक क्वाड्रिलैटरल, देखो ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम नहीं है. ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलैटरल हुज ओनली वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल. मीनिंग अगर मैंने क्वाड्रिलैटरल ड्रॉ किया, लेकिन देखो ये एक ही पेयर मैंने पैरेलल किया, लेट अस से इन माय ट्रेपेजियम PQRS, यहाँ पे आप देख सकते फिगर में पैरेलल साइड्स कौन से है, PQ एंड SR आर पैरेलल, यानी यहाँ पे PQ इज पैरेलल टू SR, एक ही साइड पैरेलल है, ऑपोजिट साइड्स, तो वो ट्रेपेजियम हुआ. अब एक स्पेशल ट्रेपेजियम की बात करते हैं, इट्स एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम. आइसोसेलेस ट्रेपेजियम लिखेंगे, अ ट्रेपेजियम हुज वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यानी ऐसा,
एंड द अदर टू साइड्स आर इक्वल, बाकी के साइड इक्वल है, तो वो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हुआ. समथिंग लाइक दिस. लेट अस से आई ड्रॉ ये फिगर ड्रॉ करता हूं. देखो, नाउ इन दिस ट्रेपेजियम पी क्यू आर एस वी कैन सी के पी क्यू एंड एस आर आर पैरेलल. ये तो ट्रेपेजियम का प्रॉपर्टी हुआ. पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस. एट द सेम टाइम यहाँ पे पी एस का वैल्यू जो है और क्यू आर का वैल्यू इक्वल होगा. पी एस एंड क्यू आर इक्वल इन मेजर, तो ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हुआ. एंड द लास्ट फिगर इज अ काइट. काइट कुछ ऐसा फिगर है कि टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, यानी ये और ये, दिस इज इक्वल. एट द सेम टाइम ये साइड और ये साइड इक्वल हुआ. सो इफ आई ड्रॉ अ फिगर पी क्यू आर एस, I will get something like this कि PS और PQ इक्वल है. देखो, दो एडजेसेंट साइड इक्वल है. I will also get SR और QR भी इक्वल है. SR एंड QR इक्वल है. एंड बाकी जो डायगोनल है, द डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स, यानी ये दो डायगोनल्स जो है, डायगोनल PR एंड डायगोनल SQ 90 डिग्री में यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे. मीनिंग डायगोनल PR इज परपेंडिकुलर टू डायगोनल SQ. तो ये हमारा काइट का प्रॉपर्टीज हुआ. अभी आप देख सकते हैं ये ट्रेपेजियम, काइट, ये सब ये हमने जो बनाया था, ये स्पेशल क्वाड्रिलेटरल का टेबल के इट्स ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम और काइट. पैरेललोग्राम के दो और टाइप है, रेक्टेंगल एंड रोम्बस. एंड ये रेक्टेंगल रोम्बस के दो टाइप है, स्क्वायर. अब देखो, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर एक फैमिली बनता है, दे आर वन फैमिली. ट्रेपेजियम अलग है, काइट अलग है. ये दोनों क्वाड्रिलेटरल है लेकिन ये अलग है, राइट? ओके, नाउ सी, लुक एट दिस टेबल. दिस टेबल 12.2 shows the properties एंड अलग अलग पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर. तो देखो, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ऑल फोर में ये ट्रू है. Opposite sides are equal, it is true in parallelogram, all four again. Opposite angles are equal, again true in all four. All angles are equal, true only in rectangle and square. Diagonals bisect each other, true in all four. But diagonals bisect at right angle, true only in rhombus and square. And diagonals are equal to each other, true in rectangle and square. तो इसी स्क्वायर में तो सारे प्रॉपर्टी आ जाएंगे, कुछ रेक्टेंगल में, कुछ रोम्बस और पैरेललोग्राम में कम है, राइट? तो दिस, प्लीज रिमेंबर दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल. उसके बाद आपको अभी करना है एक्सरसाइज 12D, आपको सॉल्व करना है. यू सी द क्वेश्चंस एंड ट्राई टू फिल आंसर्स. आई डोंट नो ये आंसर्स जो है वो राइट है या रॉन्ग है, आप चेक कर सकते हैं. ओके, एंड देन ये पूरा एक्सरसाइज आपका हो जाएगा, राइट? यू कैन स्टॉप द वीडियो एंड फाइंड द आंसर्स एंड सॉल्व इट आउट. ओके, एनी डाउट्स यू कैन लेट मी नो. चलो, बाय.